بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 14 جون اور دن ہے ہفتے کا. ایک طرف اسرائیل اور ایران کی خونی جنگ چھڑ چکی ہے اور تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے کا پورا خطہ، پورا ریجن جو ہے وہ جنگ کی خوفناک لپیٹ میں ہے. اور پاکستان کا اس وقت دفاعی نظام فل الرٹ پہ ہے، ہائی الرٹ پہ ہے، ریڈ الرٹ پہ ہے، کیونکہ کوئی بھی شرارت ہو سکتی ہے اور اسرائیل سے پاکستان کبھی بھی خیر خواہی کی توقع نہیں رکھ سکتا. دوسری جانب ہمارے ہاں اندرونی خلفشار بھی عروج پر ہے، سیاسی انتقام جو ہے وہ عروج پر ہے. فسطائی رجیم اس وقت اپنے اندر بھی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کا دورہ امریکہ جو ہے وہ بھی متنازع اور تنازعات کا شکار ہو چکا ہے، اور پاکستانی اوورسیز پاکستانی پروفیشنل ڈائسپورا انہوں نے بھرپور احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے. فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ سے پہلے وہاں پہ ان کے بارے میں، ان کے طرز حکمرانی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اور وہاں کے پڑھا لکھا طبقہ، وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ، وہاں کا انٹلیکچوئل ایلیٹ وہ کیا لکھ رہی ہے، اور جو امریکن سوسائٹی میں میٹر کرتا ہے. کیونکہ ایک طرف ہم ہیں اور یہ فسطائی رجیم ہے جنہوں نے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، کرائے کے ٹٹو، اور ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ پھر ادھر ان کے لیے لابنگ کرتے ہیں. اور دوسری جانب وہاں کا انٹیلیجنشیا جو ہے وہ کیا لکھ رہا ہے. امریکی جریدہ ہے ہارورڈ انٹرنیشنل ریویو، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی 2023 کو پاکستان کے مقبول ترین رہنما عمران خان کی گرفتاری کے خلاف بڑے پیمانے پر عوامی مظاہروں نے ملک کو مفلوج کر دیا. لیکن یہ دن ملک کے سیاسی منظرنامے میں بھی ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ ملک کی خفیہ ایجنسی ISI نے مظاہرین کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کر دیا. شہریوں پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے، پرائیویسی کے حقوق پامال کرتے ہوئے بغیر وارنٹ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، فون کالز ٹیپ کی گئیں، میڈیا پر سینسرشپ میں اضافہ اور صحافیوں کو اغوا کیا گیا. بے شمار صحافیوں پہ قتل، دہشت گردی، غداری، بغاوت کے مقدمات درج کیے گئے. سیاسی کارکن، اپنے مخالفین، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں، رہنماؤں کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 برس کے دوران فوج نے پاکستان میں حکومت سازی پر وسیع اثر و رسوخ قائم کر لیا ہے، اور اپنے آمرانہ اختیارات کو ادارہ جاتی بنانے کے لیے متعدد اقدامات بھی کیے ہیں، جنہیں انتخابات میں مداخلت کرنے اور سیاسی فیصلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اس رپورٹ میں، ہارورڈ انٹرنیشنل ریویو کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ اور 26ویں ترمیم جیسی قانون سازی سے ملک میں ڈکٹیٹرشپ اور آمرانہ طرز حکومت اب بتدریج ادارہ جاتی شکل اختیار کر چکا ہے. حکومت قانون سازی اور سرویلنس کے عنوان سے اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے پہلا جمہوریت مخالف اقدام آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم لانا تھا، جو کہنے کو تو قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے لائی گئی، مگر اس کے نتیجے میں شہری آزادیوں کو شدید نقصان پہنچا، جس سے پاکستان کے پارلیمانی نظام کی حیثیت پر بھی سوالات اٹھنے لگے. کیونکہ اس قانون سے ISI کے اختیارات اور انٹیلیجنس اداروں کے اختیارات اور دائرہ کار کو مزید وسعت دی گئی، سزاؤں میں اضافہ کیا گیا، اور ریاستی اداروں کو شہریوں کی نگرانی کے لیے مزید اختیارات دے دیے گئے. ISI کو عوام کی ڈیجیٹل سرگرمیوں کی نگرانی کے بھی اختیارات دیے گئے، جو کہ شہریوں کی نجی زندگی، آزادی اور سماجی دائرے میں مداخلت ہے. اس قانون سازی سے قبل خفیہ ایجنسیوں کو شہریوں کی ذاتی معلومات کی نگرانی کے لیے عدالت سے اجازت لینا ہوتی تھی، مگر اب ISI کو بلا روک ٹوک رسائی حاصل ہو گئی ہے. ترمیم کے باوجود بعض حساس معاملات کو اتنا مبہم اور غیر واضح رکھا گیا ہے تاکہ حساس ادارے اپنی مرضی کی تشریح کر سکیں. ہارورڈ
इंटरनेशनल की रिव्यू की रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून साजी के जरिए एजेंसियों को इख्तियारात दिए गए हैं कि हसास मालूमात के डिजिटल जराए से फैलाव को जुर्म करार दें। इस इख्तियार ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की राह हमवार की और उसकी आड़ में इंटरनेट की बंदिश जैसे इक़दाम किए गए। लिहाजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम के बाद इंटेलिजेंस इदारों के लिए एक ऐसा कानूनी हथियार बन चुका है जिसके जरिए वो कौमी सलामती के नाम पर जाबराना इक़दाम कर सकते हैं और ये रियासती सरपरस्ती शहरियों की निजी आज़ादी को ख़त्म करके उन्हें एक फर्माबरदार रियाया बना देती है, कानून की हुक्मरानी को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। इंतखाबी जमहूरियत का जवाल इस उन्वान से इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई आमरीत की वाज़ेह मिसाल 2024 के इंतखाबात के नताइज हैं, जिनमें सिक्योरिटी इदारों ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी अमल में मुदाखलत की और साबिका हुक्मरान जमात की हुकूमत में वापसी को यकीनी बनाया, यानी मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ खानदान। रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में दिए गए इख्तियारात का हदफ किसी बैरूनी खतरे के बजाय पीटीआई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया, उन्हें टीवी पर नशर होने से रोक दिया गया, उनके नाम लेने पर पाबंदी, उनकी खबर देने पर पाबंदी, उनकी कवरेज करने पर पाबंदी। इनकी जमात को यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। उम्मीदवारों के घरों पर छापे मारे गए और इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलाए गए और अगर ये उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सियासत से किनारा कशी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा होने का ऐलान करते थे तो उन्हें छोड़ दिया जाता था और उन्हें बरी जिम्मा करार दिया जाता था। बाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ये काम उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई न हुई। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई नहीं हुई। फिर पीटीआई उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दे दिए गए, उनका निशान इंतखाबी निशान छीन लिया गया था ताकि पीटीआई के बयानिए और अलामती सियासी मुहिम को भी ख़त्म किया जा सके। पोलिंग के बाद फार्म 45 और फार्म 47 के नतीज में वाज़ेह फ़र्क देखा गया और वो उम्मीदवार जो रात को जीत रहे थे, रात तक के नताइज के मुताबिक उनको बरतरी हासिल थी, सुबह तक उतने ही मार्जिन से उनको हरवा दिया गया और एक आला सरकारी अफसर ने धांधली का एतराफ़ करते हुए ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और ये बेकायदगियाँ जाहिर करती हैं कि 2024 के इंतखाबात इंतहाई गैर शफाफ थे, जिससे जमहूरियत मज़ीद कमज़ोर हुई। हार्वर्ड इंटरनेशनल के मुताबिक पीटीआई को इंतखाबी और जमहूरी अमल से बाहर रखना आमरीत की तौसीक के मुतरादिफ था, जिससे मुल्क एक ऐसे रास्ते पर गामजन हो चुका है जहां रियासती ताकत के लिए मनमाने कवानीन बनाए जा रहे हैं। अदालती खुद मुख्तारी का खात्मा कर दिया गया। इस उन्वान से हार्वर्ड इंटरनेशनल की रिपोर्ट में लिखा गया है कि अदलिया की खुद मुख्तारी जमहूरी रियासतों की एक बुनियादी खसूसियत है, लेकिन पार्लियामेंट ने 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया से और आज़ादी खुद मुख्तारी छीन ली। चीफ जस्टिस की तकर्री अब सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि अब यह तकर्री अब पार्लियामेंट और इंतजामिया के अरकान करते हैं। इससे ताकत के तवाज़ुन के कानून को भी नुकसान पहुंचा है। जजेस को बतौर चीफ जस्टिस और दीगर तैनातियों के लिए मेरिट पर फैसले की बजाय हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने की तरगीब दी गई। चीफ जस्टिस की तकर्री को अब सियासी बना दिया गया है। अब अदलिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है नजर आती है। अगरचे आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी जैसे कानूनी इदारों ने इस मसले पर शऊर उजागर करने की कोशिश की है, मगर ये आवाज़ें अब तक सुनी नहीं गईं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी और अमेरिका के कानून साजों की कोशिशें भी पाकिस्तान में जमहूरी असूलों को बेहतर बनाने में अब तक नाकाम रही हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 26वीं आईनी तरमीम और 2024 के इंतखाबात को बदतरीन जाबराना इक़दामात की एक अहम मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है।
हुकूमत ने गुज़श्ता 3 बरस के दौरान अपनी कानून साजी के जरिए अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को आइंदा कई दिहाइयों तक के लिए खतरे में डाल दिया गया है। अगर इमरान खान को रिहा, सिविल इदारों और जमहूरियत को बहाल न किया गया तो पाकिस्तान में आमरीत की तरफ झुकाव का अमल मजीद जारी रहने का इम्कान है। ये हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू की एक रिपोर्ट है, मुफस्सल आर्टिकल है जिसमें ये लिखा गया है और ये आर्टिकल जो हैं ये मैटर करते हैं। दूसरी जानिब जनाब आसिम मुनीर साहब जिन हालात में अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, अब वो दौरा जो है वो मज़ीद तनाज़ात का और शिकार और वो मज़ीद अंडर प्रेशर होंगे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान पर हमला कर चुके हैं और बहुत ही खौफनाक हमला करके उनकी सारी की सारी फौजी क़यादत को शहीद कर चुके हैं और उनके आर्मी चीफ, ईरान के आर्मी चीफ और उनके जौहरी साइंसदान और जौहरी अथॉरिटीज़, जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक जितने भी आला हुक्काम थे उन सबको शहीद कर दिया गया है और जिसकी वजह से मामलात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। और दूसरा जो मुतालबा जनरल आसिम मुनीर साहब से, फील्ड मार्शल से किया जाएगा, वो भी डू मोर के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल आपको मैंने दिखाया रिव्यू रिपोर्ट, ये सारे का सारा आर्टिकल जो है, सारी की सारी रिपोर्ट ये इस अमर की गमाज है कि जो बयानियाँ DGISPR ने बनाया, जो बयानियाँ मरीम साहिबा बना रही हैं, जो बयानियाँ नून लीग ने बनाया, वो सारे का सारा बयानियाँ 9 मई का मामला हो, 8 फरवरी 2024 का मामला हो, इलेक्शन चोरी का मसला हो, या फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम का मामला हो और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, मीडिया पर पाबंदियाँ हों, अदलिया पर पाबंदियाँ हों, अदलिया को कंट्रोल करने का मामला हो, तो उन तमाम मामलात को जो इस इंटेलिजेंशिया जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड से देख रही है। वो उस आंख से नहीं देख रही जिस आंख से ये जो जाली रजीम है, फिस्ताई रजीम है, जिस तरीके से उसको मुसल्लत करना चाहते हैं। तो इसलिए ये खुद एक बहुत बड़ी वहाँ पे अमेरिका के इक़्तिदार के ऐवानों में बहुत कुछ हो रहा है और जनरल आसिम मुनीर साहब को मुसलसल अंडर प्रेशर रखा जाएगा। और फिर ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तो एहतजाज का ऐलान किया ही हुआ है, जबकि उधर भी जो अमेरिका के इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहाँ पे भी जहाँ आसिम मुनीर साहब के इस तर्ज हुक्मरानी को नापसंद करने वाले लोगों की अक्सरियत है। लेकिन चूँकि अमेरिका ने अपने मफादात देखने होते हैं और वो चाहेंगे कि जनरल साहब की इस कमज़ोरी से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और इनसे से ज़्यादा काम लिए जाएं, और वो काम जाहिर है अमरीकी मफादात के होंगे और अमेरिका अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाने की कोशिश करेगा और ये अज़ खुद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए एक ख़तरनाक काम होगा। इसीलिए जनाब, क्योंकि माजी में भी जब फ़र्द वाहिद ने फैसला किया, खा वो जनरल ज़िया थे, खा वो जनरल मुशर्रफ थे, खा वो जनरल याहिया या फिर जनरल अयूब खान, जब भी फ़र्द वाहिद फैसले करते हैं तो उसका खमियाजा जो है वो मुल्क, कौम और आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि ड्राइंग रूम में किए गए फैसले जो हैं उसमें कलेक्टिविज्म नहीं होती, इज्तिमायत नहीं होती, मुशावरत नहीं होती, बल्कि वो ज़ाती मफादात के गिर्द घूमते हैं। और जब पहले से पता हो कि फील्ड मार्शल का एक पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको वो लागू ना करना चाहते हैं, जिसको वो नाफिज करना चाहते हैं, तो फिर तो जो आप किसी के पास जाएंगे तो उनको पता होगा कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा इनकी कमज़ोरी बन चुका है और इनकी सर्वाइवल के लिए भी कमज़ोरी बन चुका है। लिहाजा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करेंगे, आपसे फ़ायदा उठाएंगे और आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके आपको फारिग कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। और ये सिचुएशन है। तो देखते हैं कि अब हमारे फील्ड मार्शल माजी में झांकते हुए अपने बड़े लोगों की, बड़े उस्तादों की तारीख पढ़कर क्या सबक हासिल करते हैं। तो फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।